Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. After completing complex number, now we are starting our second chapter, that is function and limit. Calculus is very important branch of mathematics and engineering. जहाँ कहीं भी कुछ चेंज से रिलेशन आता है तो तुरंत ही कैलकुलस का रोल आता है और कैलकुलस स्टडी करने के लिए फंक्शन एंड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So today we are going to study about function. What is function? What are the different terminology of function, different types of function. तो हमें फंक्शन समझना है. So before studying function, we have to study a word called relation. तो रिलेशन हम सोशल टर्मिनोलॉजी में सपोज x इज ब्रदर ऑफ y, तो वैसा ही कोई रिलेशन, वो मैथमेटिकल रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो. तो फॉर एग्जांपल आई डिफाइन ये एक पेयर हमने ले ली एक्स वाई. इफ x इज ब्रदर ऑफ y, तो यहां पे xy इस सेट H में होगा अगर x जो है वो y का ब्रदर हो तब. तो सपोज रमेश इज ब्रदर ऑफ सीमा, so we can say Ramesh Seema belongs to this set H, means Ramesh and Seema are related. If we said Mahesh Ramesh does not belongs to H, H में नहीं है, उसका क्या मीनिंग है? If Mahesh is not the brother of Ramesh, तो ये जो एलिमेंट है वो H में नहीं होगा, that this element does not belongs to H. But here Ramesh is brother of Seema, then Ramesh Seema belongs to H. So this is called a relation. Relation कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिकल रिलेशन भी हो सकता है. सपोज मैं ऐसा डिफाइन करूं G is equal to X, y, where X is greater than Y, xy belongs to n. ये एक पैर हमने लिए where x is greater than y. This is the condition, यानी x जो है वो y से बड़ा, strictly greater than है, यहाँ पे equal भी नहीं और दोनों एलिमेंट्स n के हैं. तो इसके अंदर हमें देखनी है अगर पैर ये है कि नहीं है. सपोज मैं लिखूं 2 1, so is it belonging to G? So let's take this first element. 2 must be greater than 1. So yes, 2 is greater than 1. Both the elements are from n. So 2 1 belongs to G because this is satisfying the condition of G. Let's take another example. 2 4. तो 2 4 G में है कि नहीं है? So 2 is not greater than 4. So 2 4 does not belongs to G. So this is again a relation. अब इसी रिलेशन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और हमें फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन हमें समझनी है. Now we want to understand the concept of function. Here we have taken two non-empty set A and B. The elements of set A are 1 2 3 and the element of set B are 5 7 9 11. Let's take a function f of x is equal to 2x plus 3. तो यहाँ पे हम a के एलिमेंट ले लें. So f of 1, so by this definition f of 1 will be 2 into 1 plus 3. So 2 into 1 2 plus 3, that is 5. Then f of 2, again substitute in this, so 2 into 2 4 plus 3, that is 7.
then f of 3 is equal to 2 into 3, substitute in this, plus 3, so 2 into 3 6 plus 3 9. So here for the elements of A we are getting 3 pairs like this. For 1 we are getting 5, for 2 we are getting 7, for 3 we are getting 9. So this is our function f, which is subset of A cross B. Here what is A cross B? अगर हम A cross B define करें तो A के जितने भी एलिमेंट है उन सब की हम पेयर B के साथ बना दे. So what we get? 1 5, then 1 7, then 1 9, then 1 11. तो हमने 1 की पेयर सभी के साथ में ले ली B के साथ में. Similarly 2 के साथ में, so this is 2 5, 2 7, then 2 9, then 2 11. Similarly with 3, so 3 5, 3 7, 3 9 and 3 11. So this is our set A cross B. So this is a relation. Some relation is there. So A cross B जो है ये कुछ relation हो गया. हमने जो function define किया है f is equal to with this f of x is equal to 2x plus 3. तो ये जो है 1 5 2 7 3 9 this is subset of A cross B. आप देखिए A cross B के अंदर ये सभी एलिमेंट्स है 1 5, then 2 7, then 3 9. लेकिन A क्रॉस B के कौन से एलिमेंट यहाँ फंक्शन में है जो इस रिलेशन को इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं वो. तो फंक्शन को हम अब वेन डायग्राम से समझने का ट्राई करेंगे. सपोज ये A हम ले रहे हैं, A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, then take B, B के अंदर हमारे पास है 5 7 9 and 11 and function is from A to B is related with this f of x is equal to 2x plus 3. तो 1 के लिए हमें यहाँ पे जो एलिमेंट मिल रहा है that is 5, for 2 we are getting 7, for 3 we are getting 9. तो यहाँ पे A में जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए हमें कुछ आंसर यहाँ पे मिल गया. B में B के लिए B में एक कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर हमें मिल रहा है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A. So this is called function. यहाँ पे फ्रेंड्स 11 is not related with any element of A. तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट फंक्शन के लिए नहीं है. फंक्शन के लिए यहाँ जो एलिमेंट है A में वो सभी एलिमेंट B के कोई यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए. ये जो है f of x वो हमारा कोई रूल बोल सकते हैं या this is something each element is associated with some element with something, so that is this rule. So now we want to study the definition of function के exact definition function की क्या है. तो फंक्शन में हमने यहाँ दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, हमने एक रूल डिफाइन किया है यहाँ पे. तो सभी A के एलिमेंट B के कोई ना कोई एलिमेंट से यहाँ पे रिलेटेड है. सो दिस इज फंक्शन. नाउ वी वुड लाइक टू सी द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. So now definition of function. Let A and B two non-empty set. यहाँ पे जो सेट है वो नॉन एम्प्टी, यानी नॉन एम्प्टी का क्या मीनिंग है? एटलीस्ट एक एलिमेंट वहां पे होना ही चाहिए. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is related to a unique element, this is also important word,
Unique means one and only one. So every element of set A is related to unique element of set B. Then such a relation, और हम उसे कह सकते हैं रूल और कॉरस्पॉन्डेंस. रिलेशन, रूल और कॉरस्पॉन्डेंस जो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ में रिलेट करता है उसे हम रिलेशन, रूल या कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं. इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी. तो इस टाइप का जो रिलेशन है, इस टाइप का जो रूल है, कॉरस्पॉन्डेंस है कि ए के एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के साथ में कनेक्ट, एसोसिएट करता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी. इसे हम कैसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स? फंक्शन एफ फ्रॉम ए to B. Since this is new notation for you people, so function f from A to B. अब इसके अंदर फ्रेंड A को हम क्या कहते हैं, B को हम क्या कहते हैं, वो हमें देखना है. So here this A is called domain. A को हम कहते हैं डोमेन और इसे हम D F से भी लिख सकते हैं, मींस डोमेन ऑफ F. सिमिलरली इस B को, यानी जो राइट हैंड साइड में है, ऐसा जरूरी नहीं है कि A ही डोमेन होगा. अगर इस टाइप से हमने फंक्शन लिखा हुआ है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो डोमेन और जो राइट हैंड साइड में है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन. सपोज फंक्शन अगर फ्रॉम फंक्शन F फ्रॉम B टू A, तो B विल बिकम डोमेन एंड A विल बिकम कोडोमेन. तो फ्रेंड्स फिर से इसकी डेफिनेशन हम एक बार देखें. लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए मींस एटलीस्ट वन एलिमेंट दोनों में होने चाहिए. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी B के यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होना चाहिए बाय सम रिलेशन, रूल और कॉरस्पॉन्डेंस, देन it is called a function from set A to B and it is denoted by the symbol F from A to B, where this A is called domain, this B is called codomain for this particular set. यानी यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे हम डोमेन कहते हैं और जो राइट हैंड साइड में है उसे हम कोडोमेन कहते हैं. तो फ्रेंड्स हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था कि जिसके अंदर हमने सेट A के अंदर वन टू थ्री लिया था, फंक्शन हमने डिफाइन किया था f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 से डिफाइन किया था. तो B में जो हमें एलिमेंट थे B के अंदर जो एलिमेंट थे 5, 7, 9 and 11. So 1 was associated with 5, 2 7 से, 3 9 से. तो यहाँ पे हम वो डेफिनेशन चेक करना चाहेंगे. यहाँ पे A और B नॉन एम्प्टी सेट है. A के अंदर 1 2 3, B के अंदर 5 7 9 और 11 है. A के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों एलिमेंट्स B के यूनिक एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएट होने चाहिए बाय सम रूल और सम रिलेशन और सम कॉरस्पॉन्डेंस. तो वो जो रूल या कॉरस्पॉन्डेंस या रिलेशन है वो इस पर्टिकुलर केस में f of x is equal to 2x plus 3. दिस कुड बी एनीथिंग. और A के सभी एलिमेंट्स B के यूनिक एलिमेंट्स. तो यहाँ पे 1 के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे 5. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 के लिए हमें यहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट मिले. तो 1 के लिए 5 है, 2 के लिए 7 है और 3 के लिए 9 है. यानी A के सभी एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिल गए जो यहाँ B में हैं. अब यहाँ पे 11 के लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस
की कोई जरूरत नहीं है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए यानी डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स के लिए हमें को डोमेन में यानी कि यहाँ पर बी में एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो 1 के लिए वो यूनिक एलिमेंट है 5, 2 के लिए वो यूनिक एलिमेंट है 7, 3 के लिए यूनिक एलिमेंट है 9। तो सभी एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ यूनिक एलिमेंट मिल गए। हमारा जो रिलेशन है वो f of x is equal to 2x plus 3, so this is a function। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन है 1 2 3, को डोमेन क्या है, को डोमेन है 5 7 9 11। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए जो हमें आंसर यहाँ बी में मिला है उसे हम बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहां पे रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, तो यहां जितने भी एलिमेंट है उसका हमें जो आंसर है हम कह सकते हैं इमेज, तो वो हमें मिला है। रेंज ऑफ फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं आर एफ से। तो 1 के लिए हमें मिला है 5, 2 के लिए हमें मिला है 7, 3 के लिए हमें मिला है 9। So this is range of this function। यहाँ पे 5 7 9 तो है बट 11 यहाँ पे नहीं है। क्यों 11 नहीं है, क्योंकि 11 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे है 5 7 9, बट कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन इज होल सेट 5 7 9 11। so from this we can say range of function is always subset or maybe equal to codomain। कभी भी रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन से ज्यादा नहीं हो सकता। रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑलवेज सबसेट और मे बी इक्वल टू कोडोमेन। तो इस पर्टिकुलर केस में रेंज ऑफ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट ज्यादा है। सपोज यहां पे 11 नहीं होता तो रेंज ऑफ फंक्शन एंड कोडोमेन बोथ विल बी सेम। तो फ्रेंड्स हमने क्या टर्मिनोलॉजी देखी, फंक्शन देखा, सेट देखा, नॉन एम्प्टी सेट, यूनिक एलिमेंट, रिलेशन, रूल, कॉरस्पॉन्डेंस। दूसरा हमें देखना है इमेज। तो यहां पे 5 7 9 जो है वो इन एलिमेंट की इमेज है। सो 5 इज द इमेज ऑफ 1, 7 इज द इमेज ऑफ 2, 9 इज द इमेज ऑफ 3। यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं f of 1 is equal to 5। so this 5 is known as image and this 1 is known as pre-image। तो 5 इमेज है और 1 प्री-इमेज है। तो यहां पे 5 7 9 वो इमेज है, 1 is pre-image of 5, 2 is pre-image of 7, 3 is pre-image of 9, 11 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज आल्सो एज सेट ऑफ इमेजेस। रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएंगे, जितनी भी इमेजेस हैं वो सब वहां पे आ जाएंगे। तो इमेज कहां पे होगी, कोडोमेन में। प्री इमेज कहां होगी, डोमेन में। तो फिर से फ्रेंड्स हमने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी क्लियर की, व्हाट इज अ फंक्शन, सेट, नॉन एम्प्टी सेट, यूनिक एलिमेंट, रिलेशन, रूल, कॉरस्पॉन्डेंस, देन डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन का नोटेशन, रेंज ऑफ फंक्शन उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, इमेजेस और प्री इमेजेस। तो यार रेंज ऑफ फंक्शन को हम और ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ इमेजेस। तो फ्रेंड्स ये जो है वो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर function f from a to b with this relation, this rule is a function। यहां पे हम दो एग्जांपल ले रहे हैं और हम ट्राई करेंगे देखना कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं। सपोज इस फंक्शन f में a is related to 1, b is related to 2, c is related to d, and this is the Venn diagram। So is it a function or not, that we have to check। तो यहाँ पे a के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट्स के लिए
बी में हमें कोई इमेज मिल रही है और वो इमेज यूनिक यानी ओनली वन होनी चाहिए। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है यानी उसमें कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। तो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। ए के यानी डोमेन के सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के कोई यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो वो सब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से कि f from a to b is a function। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे g, a is associated with 1 as well as 2। a के हमें दो आंसर मिल रहे हैं। अगर हम f of या g of a, यहाँ पे हमने g लिया हुआ है तो g of a कर रहे हैं तो हमें 1 भी मिल रहा है और g of a 2 भी मिल रहा है। b के लिए सपोज हमें 2 मिल रहा है, c के लिए 3 मिल रहा है। सो इज इट अ फंक्शन और नॉट, दैट वी नीड टू चेक। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो a और b दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, वो सेटिस्फाई हो रहा है। a के सभी एलिमेंट्स b के यूनिक एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होने चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि a जो है उसका रिलेशन b में 1 और 2 दोनों के साथ में है। Therefore we can say g is not a function। g फंक्शन नहीं है, g रिलेशन है। Every function is a relation but every relation is not necessary to be a function। तो ये रिलेशन है यहाँ पे बट ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। यहाँ पे a डोमेन है, b is कोडोमेन, 1 is image of a, 2 is image of b, 3 is image of c। तो रेंज ऑफ फंक्शन या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इमेजेस, तो वो हो जाएगा हमारा 1 2 3। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन सेम है। कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन में क्या रिलेशन है? सो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तो इस केस में कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन दोनों सेम है। इमेजेस, ये सेट ऑफ इमेजेस, ये सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो फ्रेंड्स दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अब कौन सा रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है वो हम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर से फंक्शन की डेफिनेशन एक बार हम देखना चाहेंगे कि दो नॉन एम्प्टी सेट a और b, a के सभी एलिमेंट्स b के यूनिक एलिमेंट के साथ में किसी भी रूल या रिलेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस से एसोसिएट होना चाहिए, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं और उसे हम रीड करते हैं फंक्शन फ्रॉम a to b। दिस इज नोन एज डोमेन, दिस इज नोन एज कोडोमेन। सो आई होप फंक्शन फ्रेंड्स के फंक्शन की डेफिनेशन आप सबको क्लियर हो गई। Now let's see some example of function. Algebraic function. तो friends algebraic function means y is equal to x square, y is equal to 3x cube, y is equal to 2x minus 1 upon x square plus 1। तो इस टाइप के जो फंक्शन है उन फंक्शन को हम algebraic फंक्शन कहते हैं। Next is logarithmic function. So y is equal to log x, y is equal to 3 log x minus 4। इस टाइप के फंक्शन जिसमें log इन्वॉल्व हो उसे हम logarithmic फंक्शन कहते हैं। Next is exponential function. So y is equal to a raised to x, y is equal to 2 raised to x, y is equal to e raised to x, y is equal to e raised to 2x। तो इस टाइप के जो फंक्शन है पावर वाले उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो y is equal to sin x, y is equal to cos x। इन फंक्शंस को जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटीज या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं उन्हें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसके अंदर इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू 4, कोई भी वैल्यू दो आप, उसका आंसर 4 ही आएगा। y इज इक्वल टू e, कोई भी वैल्यू दो, कोई भी इनपुट दो तो उसकी वैल्यू e ही आ रही है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं कि इनपुट का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू x, जो इनपुट देंगे वही आउटपुट, सपोज 1 दीजिए तो आंसर 1, 2 आंसर 2, तो उस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, सो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x और y is equal to modulus of sin x. So such type of functions are said to be modulus function. सभी में जब भी हम कोई पर्टिकुलर केस डिस्कस करें तो उसमें हमें फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही वो चेक करना है, उसके बाद ही हम फंक्शन कह सकते हैं। कभी-कभी किसी केस में अगर हम डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें उसकी रेंज को कि एलिमेंट्स यही हम लेंगे तो वो फंक्शन बन जाता है, लेकिन अगर हम उसे रिस्ट्रिक्शन ना रखें तो वो फंक्शन नहीं हो पाता है, तो वो चीज हमें हमेशा याद रखनी है। Now types of function, so many types of function are there, one to one function, many one function, on to function, into function, composite function, inverse function. So first one to one function, a function f is called one to one if different elements in the domain have distinct images. यानी हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक है और वो इमेज किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं है। इसे अगर हम दूसरी तरह से कहना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, if f of x is equal to f of y, यानी अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है implies x is equal to y, यानी वो दो एलिमेंट ही सेम होंगे तो ही उनकी इमेज सेम हो सकती है। तो दो एलिमेंट अगर अलग हैं तो उनकी इमेज अलग होगी, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल a is equal to, let's say 1 2 3, b is equal to 1 4 9। फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं f of x is equal to x square, तो f of 1 is 1 स्क्वायर कर रहे हैं, f of 2 is 4, f of 3 is 9। इसे हम वेन डायग्राम से कैसे समझे फ्रेंड्स? So 1 2 3 1 4 9, फंक्शन फ्रॉम a to b, ये हमारा फंक्शन है। So 1 is associated with 1, 2 is associated with 4, 3 is associated with 9। तो हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। सपोज ये 1 है तो वो सिर्फ 1 की ही इमेज है और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। 4 सिर्फ 2 की इमेज है और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। 9 3 की इमेज है और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम वन टू वन या वन वन फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मैनी वन फंक्शन। So a function which is not one-to-one function is called many-one function. Friends, function either one-to-one या many-one function ही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की इमेज यूनिक ही हो सकती है, किसी एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए फंक्शन या तो वन-टू-वन होगा या many-one होगा।
तो वन टू वन की हमने डेफिनेशन देख ली। अगर फंक्शन वन टू वन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूं a इज इक्वल टू -1 1 2 -2 and b is equal to 1 and 4 और फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं f of x is equal to x square। तो यहाँ पे f of -1 की इमेज होगी 1, f of 1 की इमेज होगी 1, f of 2 की इमेज होगी 4, f of -2 की इमेज होगी 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे -1 के लिए यूनिक इमेज मिल रही है 1, 1 के लिए यूनिक इमेज मिल रही है 1, बट 1 इज इमेज ऑफ टू एलिमेंट्स। वो -1 की भी इमेज है और 1 की भी इमेज है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। हम वेन डायग्राम से इसे समझने का ट्राई करेंगे। 1 -1 2 -2 and b is 1 4 function a to b। so 1 is associated with 1, -1 is also associated with 1, means एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक है, यानी यहाँ पे मैनी और यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट दैट इज मैनी 1। सिमिलरली यू कैन सी 2 की इमेज 4 -2 की इमेज 4। तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैनी 1 फंक्शन। अब हमें फ्रेंड्स ऑनटू और इनटू फंक्शन देखना है। So now onto function. A function f from a to b is said to be an onto function if each element of the codomain b, यानी b के सभी एलिमेंट्स के लिए is the image of some element of the domain a, यानी b के कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब है कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो किसी की इमेज ही ना हो। फिर से फ्रेंड इसे हम दूसरी तरह से देखना चाहें, फंक्शन f from a to b, so for all y belongs to b, यानी b में से कोडोमेन में से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, there exists x belongs to a, यानी b के सभी एलिमेंट के लिए a में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए such that f of x is equal to y। फंक्शन f from a to b, this is domain कोडोमेन। कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए such that f of x is equal to y, यानी ये जो एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट की इमेज हो। तो ऐसे फंक्शन को हम onto फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल f of x is equal to मैं x स्क्वायर ले रहा हूं, a is equal to ले रहे हैं हम 1 2, b is equal to हम ले रहे हैं 1 4। हम इसका सीधे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 1 की इमेज होगी 1, 2 की इमेज होगी 4। सो a में 1 2, b में है 1 4, फंक्शन f फ्रॉम a टू b। तो अब हमें फ्रेंड्स कैसे देखना है इसे, 1 के लिए कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसके लिए डोमेन में कोई एलिमेंट है तो यस, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1, मींस ये इससे एसोसिएट है, यानी हमें 1 के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मिला जिसकी इमेज 1 है। चलिए सिमिलरली यहाँ 4 के लिए कोई एलिमेंट है डोमेन में जिसकी इमेज 4 हो तो यस 2 की इमेज है 4। तो कोडोमेन
में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए कि जिसकी इमेज यहां पे वो खुद हो। तो ये जो फंक्शन है ये ऑनटू फंक्शन हो गया। तो ऑनटू फंक्शन अगर है तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में रेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो रेट ऑफ फंक्शन और कोडोमेन सेम हो जाएगा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेना चाहेंगे कि जो ऑनटू फंक्शन ना हो। तो फ्रेंड्स इसी एग्जांपल में अगर मैं यहां पे 5 ऐड कर देता हूं, बी में मैंने यहां पे 5 ऐड कर दिया, यहां पे 5 आ गया, तो अब चेक करना है हमें कि ये ऑनटू फंक्शन है या नहीं। तो यहां पे देखिए 1 के लिए एलिमेंट है, 4 के लिए एलिमेंट है, 5 के लिए यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसकी इमेज 5 हो, यानी जिसका स्क्वायर 5 हो। तो इस केस में जब हमने ये मॉडिफिकेशन करने के बाद दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। अगर हम इस 5 को हटा देंगे तो ये ऑनटू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि उस केस में सभी के लिए हमारे पास प्री इमेज है। ये अभी ऑनटू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 5 के लिए डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज 5 हो, सो दिस इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो यहां पे अगर मैं इसे 5 को हटा देता हूं तो ये ऑनटू फंक्शन बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्लियर हो गया। फिर से कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज वो हो, तो इस टाइप के फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। Next is into function. If the range of function, that is RF of a function f, is a proper subset of the codomain of f, then f is called an into function. इसका क्या मीनिंग है फ्रेंड, कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। उसी केस में रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो पाएगा। So here at least one element of the codomain is not an image of any of the elements of the domain. Example से ज्यादा क्लियर होगा ये। Suppose हम ले रहे हैं फंक्शन f from a to b। a में हमने ले लिया 1 2, b में हम ले रहे हैं 1 4 5। तो फ्रेंड फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो हमने रूल डिफाइन किया है, रिलेशन डिफाइन किया है। तो 1 की इमेज होगी 1, 2 की इमेज होगी 4। तो ये फंक्शन है हमारा, बट वेदर इट इज ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन हमें चेक करना है। तो क्या b के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट है? तो 1 के लिए हमारे पास 1 है, 4 के लिए हमारे पास 2 है, बट 5 के लिए हमारे पास डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसकी इमेज 5 हो। सो सच फंक्शंस आर सेड टू बी इनटू फंक्शन। अगर फ्रेंड्स यहां पे मैं ये 5 हटा देता तो ये फंक्शन इनटू की जगह पे ऑनटू फंक्शन हो जाता, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की इमेज प्री इमेज यहां हमें मिल जाती। लेकिन यहां पे 5 है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, therefore such functions are said to be into function। तो हमने 4 फंक्शन अभी तक डिफाइन किए, 1-to-1 फंक्शन या 1-1 फंक्शन, then many-one function, then third was onto function, last is into function। अब हम कुछ एग्जांपल से समझना चाहेंगे कि वो 1-1 फंक्शन या many-one फंक्शन है या नहीं। यहां पे हमने 4 वेन डायग्राम ड्रॉ किए हैं।
जो भी रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसे हमने एरो से मेंशन किया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ये किस टाइप के फंक्शन है, वन वन है या ऑन टू है या फिर इनटू फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। तो फर्स्ट ये वाला फंक्शन हम ले रहे हैं। तो a की इमेज है 1, b की इमेज है 2, c की इमेज है 3। तो हर एक एलिमेंट की हमें सिंगल इमेज मिल रही है और कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये वन वन और मैनी वन में से कौन से टाइप का होगा? दिस इज वन वन। सो 1 to 1। अब हमें देखना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है। तो हम कोडोमेन के एलिमेंट्स देखेंगे। क्या कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास प्री इमेज है? आंसर यस और नो। तो 1 के लिए a, 2 के लिए b, 3 के लिए c। सो आंसर इज यस। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो दिस फंक्शन 1 to 1 एंड आल्सो ऑन टू फंक्शन। ये वाला फंक्शन हम देखते हैं। सेकेंड वन, यहां पे फिर से हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज तो है ही, और 1 जो है a की इमेज है, 2 b की इमेज है, 3 c की इमेज है। तो 1 a के सिवाय और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, 2 b के सिवाय और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, 3 c के सिवाय और किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 to 1 फंक्शन हो गया। और अब हमें देखना है ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन। तो क्या कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए डोमेन में इमेज है? चलिए चेक करते हैं। 1 के लिए a है, 2 के लिए b है, 3 के लिए c है, 4 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसकी इमेज 4 हो। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन हो गया 1 to 1 इनटू फंक्शन। चलिए नेक्स्ट थर्ड। तो यहाँ पे देखिए a की इमेज है 1, b की इमेज है 1। तो एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज 1 है। तो ये जो फंक्शन है ये हो गया मैनी वन। अब हमें देखना है कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज है। तो 1 के लिए हमारे पास a और b दोनों है, पहले हमारे पास एक से ज्यादा है लेकिन है 1 के लिए प्री इमेज है, 2 के लिए प्री इमेज है। तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे प्री इमेज है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू। सो मैनी वन ऑन टू फंक्शन। यहां पे देखते हैं हम a की इमेज है 1, b की इमेज है 1। तो फिर से एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज है ये 1। तो ये फंक्शन हो गया मैनी वन। अब हमें देखना है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे डोमेन में इमेज है। तो 1 के लिए हमारे पास a और b दोनों है, 2 के लिए हमारे पास c है, 3 के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा हो गया इनटू फंक्शन। सो मैनी वन इनटू। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने ये 4 एग्जांपल लिए। ये 1 to 1 1 to 1, ये ऑन टू फंक्शन है क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज है। ये इनटू फंक्शन है क्योंकि 4 के लिए प्री इमेज नहीं है। ये मैनी वन फंक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम है, या मैनी वन फंक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम है। ये ऑन टू फंक्शन क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज है। ये इनटू फंक्शन क्योंकि 3 के लिए प्री इमेज नहीं है। तो आई होप फ्रेंड के 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन का कंसेप्ट इस एग्जांपल से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।